Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Today, we'll be discussing another topic from Nazism, Rise of Hitler. Now, we have already discussed different topics from Nazism, that is, how Germany faced different fields, how economic crisis happened, what were the years of depression, what happened during them, how currency lost its value, the German mark lost its value, how Germany's gold resources were being exhausted, how its many rich resources and resource lands were occupied by other places, what were the political formations, how did Weimar Republic come into birth, how did German parliament start, and how did Nazi came into existence, and most important was how Hitler rose into power. Now today we'll be discussing next topic from Nazism, and that is the destruction of democracy, लोकतंत्र की तबाही. On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करी, जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की हाईएस्ट पोजीशन थी. सबसे ऊंचा दर्जा उन्होंने देने का वादा किया. By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. अब तक नाजीज बहुत सारी बातें अपनी मनवाने में कामयाब हो चुके थे. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. पावर आ जाने के बाद में हिटलर ने जो डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था, लोकतांत्रिक राज्य चल रहा था, उसको खत्म करने की संरचना को खत्म करना प्रारंभ किया. A mysterious fire that broke out in German Parliament building in February facilitated his move. जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर लगी हुई आग की वजह से हिटलर अपने मकसद में कामयाब हो गया, और ये सारी घटनाएं फरवरी के महीने में हुई थी. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. व्यामार के संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए थे, इस 28 फरवरी 1933 28 फरवरी 1933 को लगी हुई आग की वजह से उनके सारे अधिकार, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, प्रेस, मीडिया को जो आज़ादी थी, असेंबली, एक जगह संगठित होकर कार्य करने की जो आज़ादी थी, वो सारी आज़ादी छिन गई. Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. फिर उसने कुछ हरकतें अपनी आर्मी वाले ग्रुप के साथ में करनी शुरू की. The repression of the communists was severe. जो कम्युनिस्ट थे उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव होना शुरू हो चुका था. Out of the surviving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. डसलडर्फ में जो 6,808 लोगों को बंदी बनाया गया था, उनमें से 1,440 कम्युनिस्ट लोग ही थे. और ये डसलडर्फ एक बहुत ही छोटा सा शहर था, जो कि जहां पर ये हरकतें हो रही. They were, however, only one among the 52 type of victims persecuted Nazis across the country. नाजीज ने देश में तकरीबन 52 प्रजाति के लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया था, और कम्युनिस्ट ग्रुप उन्हीं में से एक समुदाय.
On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट की प्रस्तावना हुई, उसे पारित किया गया। दिस एक्ट established dictatorship in Germany. इस एक्ट की वजह से जर्मनी के अंदर तानाशाही का साम्राज्य शुरू हो गया। It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. इस एक्ट की वजह से हिटलर ने संविधान को एक तरफ रखकर अपने मनमाने तरीके से तानाशाह के रूप में देश पर राज करना शुरू कर दिया। All political parties and trade unions were banned except for Nazi Party and its affiliates. नाजी पार्टी और उसके समर्थकों के अलावा बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन पर पाबंदी लग गई। The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. और अब पूरी तरह से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, मीडिया जो प्रेस और अखबार और दूसरी चीजें थी उन पर, आर्मी, सेना और जुडिशरी जो कानून व्यवस्था थी उसके ऊपर अब पूरी तरह से नाजी पार्टी का कब्जा हो गया। Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. नाजी जिस तरह की हरकतें समाज के अंदर चाहते थे या जिस तरह से अपना काम करवाना चाहते थे, उस संपूर्ण काम को आसानी से करने के लिए स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना की, सुरक्षा गार्ड स्थापित किए गए। Apart from the already existing regular police in green uniform, the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, secret state police, the SS, protection squads, criminal police and the security service SD, जो वहां पर पारंपरिक तौर से हरी यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस जो तैनात थी, उस पुलिस के अलावा ऐसे या स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स भी थे और इनके अंदर शामिल होने वाले नई सुरक्षा कर्मी थे गेस्टेपो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स थे, क्रिमिनल पुलिस थी और साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्विस या एसडी ग्रुप को भी शामिल किया गया। It was the extra constitutional power of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. इन सारी नई पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से नाजी को या नाजी पार्टी को एक ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट की पदवी मिलना शुरू हो गई। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps, deported at will or arrested without any legal procedures. अब लोगों को बिना किसी पूर्व जानकारी के नाजी पार्टी अपने मनमाने तरीके से गेस्टेपो के जो गैस चेम्बर्स थे या कंसंट्रेशन कैंप्स थे बहुत दूर इलाकों में बहुत दयनीय स्थिति में इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता था और वहां पर इन्हें मार दिया जाता। The police forces acquired powers to rule with impunity. गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने भी काम करना शुरू कर दिया और लोगों पर अत्याचार बढ़ता गया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी यही है कि धीरे धीरे तानाशाही जब जर्मनी में पावर में आने लगी तो नाजीज ने पहली चीज तो ये हुई कि वहां पर संविधान पूरी तरह से खत्म हो गया। नाजी पार्टी के ही या उसके समर्थक लोग ही पार्टी बना पा रहे थे और इसकी वजह से लोगों पर बहुत सारे अत्याचार होने शुरू हो गए। लोगों को चाहे से गैस चेम्बर्स हो या कंसंट्रेशन कैंप्स हो, इनके माध्यम से गैर कानूनी तरीके से उन पर अत्याचार होते रहे और एक तरह से पूरा समाज परेशानी झेलनी उन्होंने शुरू कर दी। That's all for today. Soon we'll meet in the next video.